Hello guys, welcome back. In the previous video we discussed about the definition of accounting and the steps of accounting. I hope you have understood in the previous video and you must have watched it. Okay. So we'll continue the topics now children about the definition of accounting. I already told you. Today what we'll discuss about bookkeeping, accounting and accountancy. Okay. How we can differentiate between all these terminologies, and also we'll discuss today the functions or the objectives of accounting. And afterwards we'll discuss today about advantages of accounting. Okay, so these three basic things we'll discuss today. Fine. So what is bookkeeping? So yesterday, in the previous video, I told you about the definition of accounting. Actually, it is an art of identification of monetary transactions, measurement in terms of money, okay, and recording, classifying, okay, and then summarizing, analyzing and interpretation, and communication thereof, at least of our financial character. These are the steps we are including in the definition of accounting, children. Actually, in the entire definition, few of the part is included of bookkeeping. Okay, so see how actually accounting starts where bookkeeping stops. Where bookkeeping stops, accounting starts. So see how you can define bookkeeping and how can you define accounting. Look at this. So bookkeeping is what? First of all, before the accounting, if you want to do the accounting, first of all you need to do bookkeeping. Okay? See. Means without bookkeeping you cannot do the accounting process. Clear? If you want to do the accounting, first of all you have to do bookkeeping. So what is bookkeeping? It is an art of identification, monetary transactions. Monetary means it should be of financial character. Clear? जिसको हम मनी की टर्म में मीजर कर सकते हैं, वही ट्रांजेक्शंस को हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस कहते हैं. मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. Next step is measurement in terms of money. How much money is involved in that particular transaction. Third thing is recording of monetary transactions. How will you record? By passing the journal entries. By passing the journal entries, we actually record the financial transaction. बेटा financial transaction को हम record कैसे करेंगे? Journal entries पास करेंगे, ठीक है? वो कैसे पास करेंगे? That is the further chapters in which you need to know what are the actually rules we will apply over there to pass the necessary journal entries. And last but not the least, that is classifying the monetary transactions. Clear? These four steps will be included in the bookkeeping. Clear? The entire definition of accounting. Definitely, when you will write the definition of accounting, you have to write all these first, because where accounting starts, where bookkeeping stops. Remember. So it can be said that it is a primary stage. It is a primary stage. Understanding? Primary stage. First of all, you want to do the accounting.
Actually, accountant when does accounting, he has to do first of all bookkeeping in such a way. अगर वो जनरल एंट्री पास नहीं करेगा, अगर उसको ये नहीं पता होगा कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, अगर वो उनको क्लासिफाई नहीं करेगा, मीन्स उनको जो है पोस्ट नहीं करेगा लेजर अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट नहीं बनाएगा, तब तक वो जो है अकाउंटिंग को कर ही नहीं सकता. अंडरस्टैंडिंग? व्हाट आर द स्टेप्स लेफ्ट? So it is a secondary stage. First of all, it is a secondary stage. It includes what are left? Analyzing. Sorry, first of all, summarizing. Summarizing means you have to prepare the trading and profit and loss account. And the balance sheet. ठीक है, अगर वो समरी प्रिपेयर नहीं होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे बेटा जी कि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. कंक्लूजन चाहिए ना हमें. तो हमें अब देखिए सारे लोग तो जो है एक्सपर्टीज नहीं होते हैं ना, अकाउंट्स की डेफिनेशन जो है हर एक को नहीं पता होती है. अकाउंट्स है क्या चीज़, ABCD डेबिट क्रेडिट थोड़ी समझेगा कोई. मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बिजनेसमैन हैं लेकिन आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक, अगर मैं आपसे जो है बैलेंस शीट के बारे में बात करूँगा, अभी कुछ बात करने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना. लेकिन हाँ, आपको ये जरूर समझ में आएगा कि हाँ आप बिजनेसमैन हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस. तो एक्चुअली जो कंपनी का ऑनर जो होता है, प्रोप्राइटर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको मतलब किस चीज़ से, उसको ये मतलब है कि भैया साल के एंड में उसकी कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज पड़ी हैं. एसेट मीन्स कितनी उसके पास एसेट, फिक्स एसेट होगी, करंट एसेट, कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी लगेगी लास्ट में, ठीक है, बिल्डिंग कितने की पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें उसको जानने की जरूरत पड़ती है. कितनी एसेट्स उसका पड़ी है, लायबिलिटी कितना चीज़ उसको चुकानी है. क्लियर? तो ये चीज़ जो है वो जानने की जरूरत पड़ती है. दूसरा, उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है. तो इसीलिए जो है अकाउंटेंट का मेन फंक्शन जो होता है समराइज करना, उसको जो उसने अकाउंट बना रखे हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्म में, ठीक है, उसी को हम समरी करते हैं. क्लियर? सेकंड थिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. बेटा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, चेक करना, एनालाइज करना, चेक करना कि कोई गलती तो नहीं होगी. ठीक है, बैलेंस शीट में दोनों, अगर बैलेंस शीट में आपका एसेट और लायबिलिटी और टोटल इक्वल मिल जाता है, इसका मीनिंग वो सही ही है. गलत होता है तो चेक करना पड़ता है क्या कमी रह गई है, किस वजह से ऐसा हुआ. एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन, दूसरों को बताना. किसको बताएंगे बेटा जी, किसको बताएंगे आखिर? बात यह है कि भाई ये अकाउंटेंट का जो फंक्शन होता है अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग करके एक तो सबसे पहले उसका जो मेन मुद्दा होता है वो इंटरनल यूज़र को बताता है. इंटरनल यूज़र मीन्स कंपनी के ऑनर को बताता है, कंपनी के मालिक को बताएगा, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है. इसलिए दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड टू नो वेदर ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट और सफरिंग अ लॉस. ठीक, कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए उसको जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा खर्च किया बिजनेस. ठीक, दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको भी जानने का पूरा राइट होता है. जैसे शेयर होल्डर की बात करते हैं, शेयर होल्डर समझते हैं आप क्या होता है? शेयर होल्डर देखिए, शेयर एक पार्ट होता है, बहुत बड़ी कैपिटल. कंपनी क्या करती है ना, अपने बहुत सारे पैसे को, बहुत सारी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम शेयर करते हैं. ठीक, और इन शेयर को जो होल्ड करता है, जो खरीदता है, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं. ठीक, अब शेयर होल्डर जो है कंपनी के, जैसे कि मैं कंपनी हूँ, मेरी कंपनी के शेयर जो है आपने परचेज किए हैं, आपने इशू किए हैं, ठीक है, आपने परचेज किए हैं, तो इसलिए क्या होगा भाई, आपको जानने का पूरा अधिकार होगा कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है लॉस में, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर रखा है मेरी कंपनी के अंदर, है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई आई विल कम्युनिकेट टू माय शेयर होल्डर आल्सो. एंड डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर, अब ये डिवेंचर देखिए, शेयर तो कोई क्या चीज, एक टाइप की एसेट होगी. डिवेंचर होल्डर क्या है बेटा, कि लोगों ने तुमसे पैसा ले रखा है. अब तुमसे जिसने पैसा ले रखा, क्या तुम जानने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगे कि वो बंदा जो है भैया हमारे पैसे दे पाएगा नहीं दे पाएगा, है ना? पूरा राइट है आपको. पता लगा लेके भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट मीन्स केपेबल नहीं है हमारा पैसा देने के लिए, तो ये डिवेंचर होल्डर कहलाता है, जो डिवेंचर को होल्ड करते हैं. तो ये एक लोन की तरह होता है और एक एसेट की तरह होता है. ये शेयर होगा, ठीक है, कंपनी की. क्लियर? ये चीज़. तो कम्युनिकेशन, बताना दूसरों को कि भैया हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस. तो इसमें सब जगह बात करती है, मतलब
क्यों फैलाते हैं? ताकि ज़्यादा से लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ होती है बेटा। देखिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताई, तो ये एक सेकेंडरी स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, जहाँ पे आपकी बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पर अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप जब डेफिनेशन लिखेंगे अकाउंटिंग की तो ये पूरा इंक्लूड करके लिखेंगे। समझ में आ रही है? और बुक कीपिंग ही सिर्फ आती है तो आप सिर्फ बुक कीपिंग का पार्ट लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो दिस इज व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एंड आफ्टरवर्ड्स अकाउंटेंसी। क्लियर? देखिए अकाउंटेंसी जो है क्या है? एक नॉलेज है। जैसे कि मैं आपसे बात करता है, स्टडी है। ठीक है, कौन सी? सिस्टमैटिक नॉलेज। जब मैं सिस्टमैटिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इसमें किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। साइंस की बात कर रहा हूँ मीन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ बेटा। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ कि भाई इसमें जो है कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी जो एक्चुअल में हमारे को क्या करेंगी? फैसिलिटेट करेंगी। विच फैसिलिटेट किस चीज़ में फैसिलिटेट करेंगी? इस चीज़ में फैसिलिटेट करेंगी कि भाई वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। इस चीज़ को फैसिलिटेट करेंगी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं टर्म्स की, मनी की टर्म्स में। दूसरा, इस चीज़ के लिए फैसिलिटी हम उसको रिकॉर्ड कर पाएँ, जर्नल एंट्री कर पाएँ, हम उनको पोस्ट कर पाएँ लेजर अकाउंट्स में, और उसके बाद हम उनको समराइज कर पाएँ, फिर उसको इंटरप्रिटेशन और एनालाइज कर पाएँ, और लास्ट में हम उसको कम्युनिकेट कर पाएँ। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली सिस्टमैटिक नॉलेज अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बेस्ड होती हैं, जिनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल कहते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में बेटा जी यही साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा जी अब आपको बताना है मैंने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए फंक्शन जैसे मैं आपसे बात करता कि फंक्शंस या फिर जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखा जाता है या फंक्शन, फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव में हो जाते हैं। तो देखिए बेटा ऑब्जेक्टिव्स में आप कैसे समझेंगे ये फंक्शन? पहली बात देखिए बेटा क्या है, जो आर्चरी वगैरह जो धनुष बाण चलाते हैं उनके पास एक गोल होता है ना, टारगेट होता है। उस टारगेट पे वो जो है मारते हैं, ठीक। और उसको मारने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आर्चरी वगैरह को अच्छे तरीके सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना पड़ेगा? उसी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, उसी वे प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं ऐसी इस तरीके से काम कि वो चीज़ें मेरा जो है गोल मेरे को अचीव हो जाए। तो यही चीज़ मेरा ऑब्जेक्टिव में होती है कि हम एक गोल अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, ठीक है, माइंड में सेट कर लेते हैं। और अकाउंटिंग का गोल क्या हो सकता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप सोचना है आपको सोचना है कि अकाउंटिंग का गोल क्या है। अकाउंटिंग का गोल ये है कि भाई एक तो हमारे को बिल्कुल ठीक तरीके से क्या ये पता लग जाए कि हमारा प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल करेक्ट तरीके से हमने असरटेन किया। ठीक। दूसरा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम ठीक ढंग से बता पाएं। ऑफ द बिजनेस, ठीक। ये दो मेन इसके ऑब्जेक्टिव में बेटा, एक तो क्या प्रॉफिट और लॉस को ठीक ढंग से वो जो है कैलकुलेट करके बता पाए। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता पाए। फाइनेंशियल पोजीशन मींस लास्ट में कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं वो ठीक तरीके से कैलकुलेट करके बताए। दूसरा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करें। ठीक है, कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ठीक ढंग से रिकॉर्ड तैयार कर पाएं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में सही जानकारी दे पाएं, करेक्ट कैलकुलेशन कर पाएं प्रॉफिट और लॉस की। दूसरा, कितनी लास्ट साल के एंड में एसेट बची हुई है, कितनी लायबिलिटीज बची हुई है, ठीक है, वो सब चीज़ हमें पता लगेगा। क्लियर? तो ये चीज़ है। उसके बाद प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन to the users
अब कैसी इंफॉर्मेशन दे, करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। कम्युनिकेशन की बात चल रही थी ना, तो वही चीज है। क्या है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ये सब देखिए जब अकाउंटिंग होती है, तो अकाउंटिंग के 3 पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि इसी से पता लगता है कि भैया प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। दूसरी होती है बेटा जी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब आप MBA BBA करेंगे बेटा तो वहाँ पे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, क्लियर। और एक होती है आपकी टैक्स अकाउंटिंग, जो टैक्स का असेसमेंट करके बताती है कि कितना टैक्स हमने पे किया था इस सेशन में, क्लियर। ये चीज देखो टाइप्स है अकाउंटिंग के। अब जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होगा। मैनेजमेंट होता क्या है? हेल्पफुल या यूजफुल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक। मैनेजमेंट होता है बेटा जी कि हम कोई डिसीजन ले पाए, क्या ले पाए? डिसीजन टेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट होगी डिसीजन टेकिंग प्रोसेस, ठीक। क्या है, हमने हमारे पास 3-4 साल के रिकॉर्ड होते हैं। उन रिकॉर्ड को जब हम देखते हैं तो भाई पता लगता है, मतलब एक ही साल में देखें हमारा प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। जब प्रॉफिट लगातार कम होते जाता है, ठीक है, लॉस होते जाता है, तो हमें इसका जानने का रीज़न जो हमें पता लगती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से करती है, जो डिसीजन लेती है कि आगे हमें किन खर्चों को बेटा कम करना पड़ेगा और किन चीज़ों को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो ये क्या है? डिसीजन टेकिंग प्रोसेस है, इसी को हम मैनेजमेंट में, ठीक है, बिजनेस में आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका मेन मुद्दा क्या है? डिसीजन टेकिंग प्रोसेस। अब यूजफुल इन मैनेजमेंट हो गया बेटा। अब एक आती है कंपैरेटिव स्टडी। ठीक, कंपेयर करना, अलग अलग साल की बैलेंस शीट हमारे पास होगी, अलग अलग साल की क्या होगी हमारे पास? बैलेंस शीट होगी। ईयर आफ्टर ईयर देखते जाएंगे, कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ है जो हमारे पता है ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर, फंक्शंस, ये क्या करता है? कंपेयर करता है। किसका? अलग अलग साल के परफॉर्मेंस में जो है कंपेयर करता है। तो ये मैंने आपको बताया, फिर दोबारा से बता दीजिए क्या क्या आपके फंक्शंस हैं। एक तो है इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, दूसरा कैलकुलेशन करना प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। तीसरा जो है आपका क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। फिर क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हेल्प करती है, मैनेजमेंट में हेल्प करती है। और कंपेरेटिव स्टडी में भी ये हेल्प करती है। कंपेरेटिव स्टडी भी इसका मेन फंक्शन। तो ये चीज़ थी बेटा जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। जस्ट गो थ्रू प्रॉपर्ली, क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा जी अब आपको बताने हैं इसके फायदे क्या हैं, अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं। अगर अकाउंटिंग के फायदे नहीं होंगे तो लोग अकाउंटिंग करेंगे, है ना। देख लीजिए क्या है इसके फायदे। तो यहीं से निकल के आ गए फायदे, ठीक है। यहीं से निकल के आ गए, ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव या फंक्शन से बताए हैं, यहीं से इनके जो है कुछ पता आ जाएंगे क्या है। एडवांटेजेस बताओ। क्या फायदे हैं? पहले तो बेटा जी क्या करती है? प्रोवाइड करती है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक। ठीक, दूसरा गिव्स ट्रू व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, और किसमें हेल्पफुल है? हेल्पफुल इन इंटर फर्म कंपैरिजन। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, कंपैरिजन जो हेल्पफुल हो रहा है वो किस चीज में हो रहा है? देखिए
इंटर फर्म का मीनिंग क्या होता है और इंट्रा, पहले दो वर्ड पे देख लीजिए बेटा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो वर्ड में, इंटर और इंट्रा क्या मीनिंग क्या होता है। इंट्रा जो होता है विद इन द फर्म होता है, मतलब एक ही कंपनी के अंदर कंपैरिजन कराना, एक ही कंपनी के अंदर कंपैरिजन कराना। और इंटर फर्म कराता है कि एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन कराना इन द सेम एस्पेक्ट। लेकिन इंटर फर्म में जरूरी है कि कंपनी से हम कंपेयर कर रहे हैं, जरूरी है कि वो कंपनी बिल्कुल हमारे जैसी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका भी मैनेजमेंट सेम तरीका होना चाहिए जैसा कि हमारा है, अदरवाइज हम कंपेयर कैसे करेंगे। ओके, सो हेल्पफुल इन इंटर फर्म कंपैरिजन कि भाई अगर हम जो है देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट इतनी चल रही है तो उनकी बैलेंस शीट कितनी है, उनको फायदा कैसे हो रहा है, तो इससे हम चेक करने में आसानी हो जाती है। दोनों साइड की बैलेंस शीट देख करके पता लगता है कि इन्होंने इस खर्चे को कम किया इसलिए इनका जो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक, तो ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटी टैक्स पे करना। ठीक है, देखिए बेटा आपको पता है कि हम जो है आप एक ही टैक्स को फॉलो करते हैं, उस टैक्स का नाम है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं इसको। क्लियर, आप पढ़ेंगे इस बार क्लास 11th में कि जीएसटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसमें आपके दो तरह के टैक्स होते हैं। ठीक है, इंटर फर्म और इंटर फर्म में लगता है। ठीक है, इंटर जीएसटी और इंट्रा जीएसटी। उसमें परसेंट अगर आप पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं डोमिनोज पे, ठीक है, तो आपको पता होगा कई बार जो है दो अलग टाइप के जीएसटी लग जाते हैं, है ना, एक सी जीएसटी लग जाता है, एक एस जीएसटी लगता है, 5% में 2.5% में जो है काट के देता है वो। ठीक है, तो जीएसटी लगता है ना हमारे पास। तो ये चीज़ है कि हम जो है टैक्स कितना पे करना है कंपनी को, उसके लिए ये असेसमेंट बहुत जरूरी है। बिना अकाउंटिंग हम नहीं पता लगा सकते कि भैया एक्चुअल में हमें कितना टैक्स पे करना है। अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ है बेटा जी इसके अंदर। क्लियर, और एक्ट्स एज प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बेटा ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉ के अकॉर्डिंग होती है, हर साल इसका ऑडिट होता है जिसको हम क्लोजिंग करते हैं, 31 मार्च पे क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग पे ऐसा क्या होता है कि उसमें ऐसा होता है कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो पर्सनस होते हैं वो आते हैं चेक करने के लिए अकाउंट सही है या गलत है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक क्या है, एक लीगल प्रूफ होता है जो हमारे पास ये प्रिपेयर करते हैं हमें सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसको हम कोर्ट के सामने ले जा सकते हैं। अगर हमारा कोई भी क्रेडिटर है हमारे पर क्लेम कर देता है तो हम उस प्रूफ को दिखा करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हमने इस क्रेडिटर को इतनी पेमेंट की थी, इस डेट को की थी। ठीक, तो ये चीज़ होती है बेटा जी जो मैंने आपको बताया कि ये कुछ एडवांटेजेस हैं। क्लियर, काफ़ी कुछ है, देखिए पढ़ेंगे तभी पता लगेगा क्या है। ठीक, और हेल्पफुल इन बताया था मैंने आपको मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर ये तो डेफिनेशन से सब निकल के आ गए हैं, सब डेफिनेशन से और फंक्शन सब एक जैसे ही लग रहे होंगे आपको, है ना। तो बस ये है कि इसमें तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताना है वो बताने हैं कुछ क्या ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत नेसेसरी होता है, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो उनको हमें पढ़ना बहुत नेसेसरी होता है, इसके बिना कुछ नहीं। ठीक, देखिए एक आज लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ, डिसएडवांटेज इसको कहते हैं। ठीक है ना, एक तो बेटा ये हमेशा जो है इट ऑलवेज follows the conventions। ये हमेशा कन्वेंशन जो प्रिंसिपल जो होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसको फॉलो करके ही चलते हैं। कई बार उन प्रिंसिपल्स में भी जो है अमेंडमेंट लगाते हैं जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाती है समझना उस चीज़ को करना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कन्वेंशंस पढ़ेंगे आप आगे जा करके कौन कौन से हैं, इसकी वजह से डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जब मैं कल आपको बताऊँगा आगे डिसएडवांटेज के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इन वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है धोखाधड़ी। ठीक, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, धोखाधड़ी।
ना कि कई लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए ना बेटा जी कुछ भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग रख देते हैं, ठीक है। कई बार बिना प्रूफ के भी जो है अकाउंटेंट पैसे चोरी करने के लिए, ठीक है, इसको पैसे चोरी करते हैं, थफ्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है कई बार जो है ऑनर खुद कहता है कि भाई तू प्रॉफिट कम दिखा, मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें जो है इसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, इस वर्ड को, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग ये है, ठीक है। तो दो मैंने आपको बताई हैं, ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल प्रिंसिपल वगैरह होंगे, इसके आगे और बताऊँगा अगर मैं आपको, फिर छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपके बेसिस को क्लियर करेंगे, क्लियर। और बल्कि उसमें आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी आप इसको ट्रांजेक्शन करेंगे और किसको आप नहीं इवेंट करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें थी। So thank you so much for watching the video, children. I hope you understood about that. Okay, and keep on trying. You have to gain the knowledge. Okay, only then will come straight away onto the numericals. Clear? Thank you so much, everyone.